right? Okay. जी. So, uh, right. So let's say, obviously, you probably do know what a class is. Class is just like creating a blueprint of anything. Okay. जी. Car basically बिल्कुल. is a class, and you have different instances of class. For example, BMW's instance, Toyota's instance, or let's say you're developing a game. So obviously, in that game, you will create a character, and there will be lots of characters that will have lots of properties. Okay. So मैं let's Yes. say class create करता हूँ, and I'll create this class. It's a very typical example I always give. Human key, not me. Everyone basically does. So इसमें what we'll do is we'll simply define is over here the init function. Init function basically होता क्या है? मैं सर आपको explain करूँगा. Let me just Okay. type. Let's say I can have over here is I can have is n, and I can comma, I can define over here is O for the occupancy. So इसके अंदर इन कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं डिफाइन करूंगा self dot name is equals to Name and occupancy, right? जी name and occupancy. Okay. जी. अच्छा So सर, हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था. जी 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 sure. जी जी, श्योर, कंफर्म. Then I can come into inheritance and give you example of that. It will be a lot better to. यस, ऑफ कोर्स. Very जी. good. ठीक है. अच्छा, inheritance basically होती क्या? There is single level inheritance and there is multi level inheritance. Okay. तो ओके. let's say I can create a class over here, और मैं create कर सकता हूँ इधर let's say employee. Okay. और let's say यहाँ भी मैं create करूंगा इन्हें ये basically init basically आपका is a constructor initialize करता है. तो जो अच्छा. employee है उसका obviously we want a name. Okay, we want the age of the employee, and let's say we want is the salary of the employee, for example. ठीक है. ऑलराइट. So yeah, we have to define them. We have to say self dot name is equals to name, self dot age is equals to age, and self dot salary is equals to salary. Right. Then I'm going to create another class, और मैं इसको कह देता हूँ let's say child employee class. ठीक है. और what I'll जी. do in this is मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसमें employee की class को inherit कर दूंगा. Okay, you see as soon as I do so you would see is यहाँ one usage लिखा आ गया. इसका मतलब है I'm using this class somewhere. It tells me right away. Okay. ओके. What I'll do is इसको मैं अपना डिफाइन करूंगा अपने तरीके से. इसमें कहूंगा let's say इसका अपना कंस्ट्रक्टर है. Okay. So इसमें I will have is the name, इसका अपना name, इसकी अपनी age, और इसकी अपनी salary, and let's say I can even have the ID as well. ऑलराइट. Right? Or जी. self, in order to save time, मैं काम करता हूँ. Let me just copy this. Let me save time. Control V करते हैं और यहाँ बस define कर देते हैं self dot ID which was distinct. Okay, is equals to let's say ID. Right. Okay. So now what I'll do is मैं इसका instance define करता हूँ. When I talk about instances, I'll say over here is emp1, for example. मैं नाम रख लेता हूँ, and I can say is this is employee 1, और इसको हम define कर देते हैं. employee 1 को let's say have over here is Kamil, and let's say we can have it over here 19, and comma we can have is let's say whatever we can say is whatever like that. Fine. Okay. जी. और इसको print कर लेते हैं, and I can have is emp1 dot age. Okay, let me just run and see what do we get. So over here emp1 is not defined. No, emp1 is defined. Oh, sorry. Yes, it's not defined. He was right. ओके. Why not defined? Hold on.
यहाँ पे आपने एम्प्लॉय 1 लिखना होगा, लाइन 7 में आई गेस। हाँ, चाइल्ड एम्प्लॉय। 1 सेकेंड 1 सेकेंड। क्या आ रहा है? मैंने एम्प्लॉय 1 लिखा है, डेफ की है, सेल्फ एज सैलरी सही है, स्पेलिंग बच्चा से चेक करते रहो मेरे सही है। एंड देन व्हाट आई डिड जी वाज मैंने चाइल्ड एम्प्लॉय लिखा है, और चाइल्ड एम्प्लॉय, हाँ तुम सही कह रहे हो, यू आर प्रॉब्ली सेइंग दिस, जी। यस, बिल्कुल सही कह रहे हो। यस। जी मेरा ख्याल था। ओके। तो यू सी आई गेट 19 ओवर हियर, लेट मी एक्सप्लेन यू ये व्हाई 19 क्या आ रहा है। देखो, आई थिंक तुम्हें काफी समझ आ गया होगा कि मैंने आई क्रिएटेड क्लास एम्प्लॉय 1 एंड आई डिफाइंड इट्स कंस्ट्रक्टर, मैंने इसको डिफाइन कर दिया। अच्छा, बाय द वे, व्हेन वी राइट सेल्फ, सेल्फ का मतलब क्या है? सेल्फ का मतलब ये है कि ये जो एम्प्लॉय क्लास है ना, ये इसकी इसकी जी। प्रॉपर्टीज है, ये इसको डिफाइन, ये सेल्फ का मतलब इट्स डिफाइनिंग इटसेल्फ, इट्स डिफाइनिंग द क्लास इटसेल्फ। ये बता रहा है कि ओके। इस क्लास का नाम क्या, इसी सेल्फ, इसका अपना क्या एज है, इसकी अपनी सैलरी क्या, मतलब इट्स डिफाइनिंग इट्स ओन एट्रीब्यूट्स, इट डिफाइंस इटसेल्फ, इट्स अ समझ गया मैं। कंस्ट्रक्टर। यानी कि दैट्स व्हाई, क्लास डिटेल्स बताता है ये। एग्जैक्टली, वो सेल्फ से आती है ना, एक्सप्लेनिंग दैट दिस इज बिल्कुल। व्हाट इट बिलोंग्स टू, इट बिलोंग्स टू इटसेल्फ, इट डजंट बिलोंग टू समवन एल्स। ये इसकी अपनी यस। प्रॉपर्टी है, ओके। एंड जी। देन वी कम हियर, वी कम टू क्लास एम्प्लॉय, चाइल्ड एम्प्लॉय, उसके अंदर हमने क्या किया, दिस इज व्हाट इनहेरिटेंस मींस, कि मैंने एम्प्लॉय 1 को इनहेरिट कर लिया, यस और नो। तो इसमें सिंस मैंने अच्छा। एम्प्लॉय 1 को इनहेरिट कर लिया है, तो इस पर्टिकुलर केस में, सो ऑब्वियसली इट इनहेरिट वर्क्स, यानी कि काइंड ऑफ मर्ज कर दिया है। मतलब जो चीज यहाँ डिफाइंड होंगी ना, वो इसमें भी जी। आ जाएगी, जो इसमें होंगी इसमें भी आ जाएंगी। समझ गया मैं, ये समझ आपकी गया। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है, ओके। एक होती है जी। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। अच्छा। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के लिए मुझे एक सेकंड दो, मैं लेट मी जस्ट, लेट्स से आई हैव अ क्लास, इससे आपको ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी, क्लास ब्रांड्स। मैं इसको ठीक है। सिंपल कर देता हूँ, लेट्स से आई कैन हैव इज brand 1, I can have over here is, let's say, okay, let me make myself a brand, okay, fine, okay. हाँ And जी। let's have brand 2, I can have over here is, let's say, j j dot, okay, fine. And then I can have is, oh, another class, मैं इसको कहता हूँ products, ओके। और इसमें हम क्या काम कहाँ करते हैं, इसमें हम ब्रांड्स को इनहेरिट कर लेते हैं। इधर हम आते हैं, यहाँ हम कहते हैं आपके प्रोडक्ट, प्रोडक्ट 1 को हम डिफाइन कर देते हैं, लेट्स से इज इक्वल्स टू .com, although there should have not been space, but it doesn't matter. Then we can have is product 2, which would be about uh, fashion wear, ठीक है। फिर हम एक और काम करते हैं, let's make another class and we can talk about popular, how popular is it। मैं popular में हमें काम करते हैं, हम इसमें प्रोडक्ट्स को इनहेरिट कर लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा। ये मैं कर रहा हूँ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ओके। सो यहाँ मैं क्या करता ठीक हूँ, यहाँ है। मैं लिखता हूँ पॉपुलैरिटी को डिफाइन करता हूँ, लेट्स से पॉपुलैरिटी ऑफ दिस इज, हम मैं रेटिंग करता हूँ 90 है, ओके। मैं इसकी पॉपुलर डिफाइन करता हूँ, लेट्स इसकी पॉपुलैरिटी इज 98 है, फाइन। एंड देन लेट्स सिंपली क्रिएट एन इंस्टेंस टू एक्सप्लेन, लेट्स से आई हैव द ऑब्जेक्ट, मैं भी बना लेता हूँ ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल्स टू पॉपुलर, and I can simply write over here is print, और मैं सिंपल कह देता हूँ ऑब्जेक्ट 1 डॉट brand 1, ठीक है, प्लस is all about, ठीक है, और प्लस जी। फिर मैं कहता हूँ ऑब्जेक्ट 1 डॉट, ऑब्जेक्ट 1 डॉट, ये आया क्यों नहीं, brand 1 ऑब्जेक्ट 1 डॉट, यस, ऑब्जेक्ट 1 डॉट प्रोडक्ट 1 जी। प्लस, और मैं लिख देता हूँ लेट्स से with
plus object1 dot pop, मैंने इसका नाम पॉपी रखा हुआ था, आई बिलीव, यस जी जी। इसको रन करके देखते हैं, व्हाट डू आई गेट। Here we go, let me extend it, yeah. So Saem is all about MrSaem.com with popularity of this much. Let me explain what's happening. So obviously you got this point. Okay, we have over here class brand, and in class product we are inheriting brand, and in class popular we are inheriting products. तो ये उसको inherit कर रहा है, ये उसको inherit कर रहा है. Yes or no? Any problem? I believe no. बिल्कुल ठीक जी है. जब मैंने ऑब्जेक्ट क्लियर डिफाइन किया लाइन 13 में, सो इनहेरिट सॉरी इंस्टेंस डिफाइन किया या ऑब्जेक्ट डिफाइन किया विच इज इक्वल टू पॉपुलर. सो मैं पॉपुलर के इक्वल कर रहा हूँ ना इसको. तो अगर मैं पॉपुलर के इक्वल कर रहा हूँ, इट्स शोइंग मी ऑल द डेफिनेशंस फ्रॉम बोथ क्लासेस. आपने नोट किया होगा इस बात को. मैं जी असाइन बिल्कुल पॉपुलर कर रहा हूँ, मगर पॉपुलर हैज बिल्कुल इनहेरिटेड इन ए मल्टी लेवल वे, तो इट्स गिविंग मी द आउटपुट. मेरी बात समझ आ रही है आपको? जी जी वो बिल्कुल मुझे ये मिस्टर साइम भी दे रहा है, मुझे मिस्टर साइम डॉट कॉम भी दे रहा है, मुझे 98 भी दे रहा है. 98 इसका जी अपना है पार्ट, मिस्टर साइम डॉट कॉम प्रोडक्ट्स का पार्ट है, एंड ऑब्वियसली मिस्टर साइम ब्रांड्स का पार्ट. यू गेट बिल्कुल माय पॉइंट. सो दिस इज ओके. अच्छा सो ऑब्वियसली आपको आइडिया हो गया होगा कि द एडवांटेज ऑफ मेकिंग क्लासेस इज दैट रीयूजेबिलिटी का बड़ा फायदा है इसमें. यू कैन रीयूज इट अगेन एंड अगेन वेयर एवर यू वांट टू. ओके. इसी जी समझ तरह गया लेट मी एक्सप्लेन यू एज वेल. ओके, ये थोड़ा लंबा ना हो जाए, मगर मैं आई हैव टू डू इट ऑब्वियसली, क्योंकि मैं इसको पोस्टपोन नहीं करना चाहता. देन यू हैव ठीक है इज मल्टीपल इनहेरिटेंस. इसके लिए लेट मी गिव एन एग्जांपल. लेट्स से मैं करता हूँ पर्सन की क्लास क्रिएट. ओके. और अभी मैं जो इसमें, हमने की वो सिंगल इनहेरिटेंस थी जी वो मल्टी लेवल थी ना. सबसे पहले की थी सिंगल लेवल, फिर मैंने की मल्टी लेवल, अब मैं कर रहा हूँ जी मल्टीपल इनहेरिटेंस. वो मल्टी लेवल अच्छा थी, अब मल्टीपल कर रहा हूँ. I'll just show you what multiple means. मल्टी लेवल की समझ आई है ऑलराइट ना. क्लास ए क्लास जी बी जी पे गई, बिल्कुल क्लास बी क्लास सी पे चली गई, उसको कहते हैं मल्टीपल है. बिल्कुल ठीक है. सो व्हाट सही आई है डू हियर इज आई क्रिएट अ फंक्शन डेफ, और मैं कहता हूँ लेट्स से पर्संस इन्फो को डिफाइन कर देते हैं, जिसके अंदर वी कैन डिफाइन इज द नेम कॉमा द एज. लेट्स मेक इट सिंपल. और सिंपली इसमें करूंगा, मैं कर दूंगा प्रिंट, और मैं कह दूंगा या इनसाइड पर्सन क्लास फॉर एग्जाम्पल. ठीक है. फिर मैं कर दूंगा प्रिंट, और यहाँ मैं कह दूंगा लेट्स से द नेम कॉमा द एज. राइट. जी ओके. तो इसको उसने खुद पिक क्यों नहीं किया? एनीवे, एनीवे लेट मी जस्ट, जो करना चाहिए था इसे, नेम एज, चलो बाद में देख लेंगे. ठीक है. देन व्हाट आई विल डू इज, मैं इधर बना लेता हूँ क्लास. आई विल हैव इज कंपनी. ओके. और यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ लेट्स से कंपनी इन्फो. और कंपनी इंफॉर्मेशन में वी कैन हैव इज लेट्स से कंपनी नेम कॉमा द लोकेशन. देन वी कैन say over here is inside company class and print company name comma location. ठीक है. so हम्म, so basically अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ ना, मैंने ये क्या डिफाइन किया है. ये मैंने डिफाइन किया है इज द पेरेंट क्लास. ओके. पेरेंट, ऑलराइट और लेट्स से मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ पेरेंट क्लास 1. ठीक है. मैंने दो पेरेंट क्लास डिफाइन कर दी. इसके बाद आई एम गोइंग टू डिफाइन इज द चाइल्ड क्लास. ठीक है. और चाइल्ड क्लास में लेट्स से आई विल हैव इज क्लास लेट्स से एम्प्लॉय. इसके अंदर वी कैन हैव इज द पर्सन कॉमा, एंड वी कैन हैव इज द कंपनी.
ठीक है। ओके और इसमें हम डिफाइन कर देते हैं, लेट्स से एम्प्लॉय इन्फो, जिसमें वी कैन हैव इज द सैलरी, कॉमा वी कैन हैव इज द लेट्स से द स्किल। ओके, और इसमें मैं डिफाइन कर देता हूँ प्रिंट इनसाइड एम्प्लॉय क्लास। प्रिंट आई कैन हैव इज द सैलरी, सैलरी खुद क्यों नहीं आया? सैलरी क्यों नहीं आया? वन सेकेंड, खुद पिक करना चाहिए था इसको। अच्छा, बाद में चेक कर लेंगे। सैलरी सपोज टू बी स्मॉल, यस, इसलिए नहीं आया। ओके, ओके अब लास्ट में सिर्फ इंस्टेंस बनाने हैं, एंड लेट्स सी। सो मैं एक इंस्टेंस बना लेता हूँ और मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ टू द एम्प्लॉय। ठीक है, और यहाँ मैं कर देता हूँ लेट्स से emp डॉट पर्सन इन्फो, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ लेट्स से कामिल, और आई कैन हैव ओवर हियर इज, ठीक है। मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ एम्प्लॉय डॉट person info, I can have is Saem, and I can have is 44, right? Okay. जी If there is no problem, G. So you see what's happening? Inside class, let's talk about it. How is it working? और मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखो। सही है मैंने क्रिएट किया इधर, I'll just explain you. फॉर्म ऊपर आता है। I created over here the parent class which is being used. So this is the parent class, person one, which has its जी own इसके मैंने डिफाइन कर दिया है इनसाइड पेरेंट क्लास, और ये प्रिंट कर रहा है नेम एंड एज। फिर मैंने डिफाइन किया पेरेंट क्लास टू। देयर टू पेरेंट क्लासेस आई हैव, एक क्लास पर्सन की है और इस पर एक कंपनी की है। कंपनी, उसका कंपनी का नाम, उसकी लोकेशन प्रिंट कर रहा है, ठीक है, फाइन। फिर एक चाइल्ड क्लास है। चाइल्ड क्लास आप नोट कर रहे हो कि दो चीजों को इनहेरिट कर रहा है, पर्सन को भी इनहेरिट कर रहा है, कंपनी को भी। यू गेट माई पॉइंट? जी This is why we call this multiple inheritance, because it is inheriting multiple classes, class वन एंड क्लास टू, दोनों को इनहेरिट करेगा। किस तरह इनहेरिट करेगा? मैं यहाँ कहता हूँ, मैं डिफाइन करता हूँ इसकी अपनी प्रॉपर्टीज, एम्प्लॉय इन्फो, जिसमें सैलरी स्किल डिफाइन कर देता हूँ, और मैं कहता हूँ प्रिंट इनसाइड द एम्प्लॉय क्लास एंड प्रिंट सैलरी। ये सारा कुछ हो गया। बट यू विल सी इज मैं एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ लाइन 18 में, दैट सेज emp एम्प्लॉय। तो emp employee, is this not the third class? Yes. So when I बिल्कुल print is the class person info, उस पे ने उसका नाम और एज मैं प्रिंट करता हूँ, तो वो मुझे दे रहा है। तो टेक्निकली जो नाम और एज है वो मैंने एम्प्लॉय में तो डिफाइन नहीं किया, वो तो मैंने डिफाइन किया हुआ है इधर पर्सन के अंदर। यस और नो? बट जी बिल्कुल इट्स प्रिंटिंग इट, क्योंकि बिकॉज वी हैव इन लाइन नंबर 13 we have done is multiple inheritance. Get my point? अच्छा मल्टीपल मतलब ये क्लास पिछली जो पेरेंट क्लासेस है, दोनों पेरेंट क्लासेस को इनहेरिट कर रहा है। पर्सन बिल्कुल क्लास में भी इनहेरिट कर रहा है, कंपनी क्लास की प्रॉपर्टीज को भी इनहेरिट कर रहा है। तो ये बड़ा बिल्कुल फायदा है ऐप डेवलपमेंट में। बात सुनो, आप एक ऐसी क्लास बनाते हो कि आपने को 10 क्लासेस की ना प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करना है। आप क्लास बनाओ, कैलकुलेटर कॉमा दिस कॉमा वेदर कॉमा दिस, सारी एप्स की प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर दो और फिर उनको यूज कर लो। Yes or no? जी यस So बिल्कुल this is known as your multiple inheritance. So you have single level inheritance, you have multi-level inheritance, and you have multiple inheritance. And this explains a very useful use of classes, actually. ऑल राइट अच्छा सर Yeah. मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो है उसमें उसको क्या चीज डिफरेंशिएट करती है उसको, my bad. Actually, I should have. Uh, अच्छा, मैं इसका इसे ये समझ आ गई, इस पे तो वापस नहीं आना पड़ेगा मुझे। नहीं 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 ये मैं समझता मैं मैं कंट्रोल से अल्लाह करवाता मैं चला जाऊं।
My bad. Actually, I should have saved it with different names. Okay. I hope I can come back. हम्म, Uh, company. नहीं, उसमें नहीं था हम। Check. जी नहीं नहीं। Yes, ये देखो। This was the example. So यस class brand है, agree with me? बिल्कुल Okay. Class product है, that is inheriting brands. Yes or no? यस यस And then we have products. Okay, class popular, which is inheriting the products. Yes or no? यस सिर्फ इसको कर रहे हैं। तो बेसिकली ये आपके है मल्टी लेवल, मतलब वो इसको कर रहा है, दोनों को नहीं कर रहा, एक को कर रहा है। यस और नो? अच्छा दिस इज मल्टी लेवल। बिल्कुल बिल्कुल गेट द पॉइंट? ओके। सो ओके मल्टी लेवल में ऑब्वियसली ये होगा कि वो एक को कर रहा है, नॉट मल्टीपल को। आप मल्टीपल भी कर सकते हो, बट दिस इज द वे वी डिस्टिंग्विश। आई नो दिस इज स्लाइट डिफरेंस। या मैं ऑब्वियसली मैं अगर कॉमा डाल के कंपनी कर दूं, उसमें डिफाइन कर दूं, दोनों को डिफाइन करेगा, तीनों करेगा। बट दिस इज नोन एज मल्टी लेवल एंड मल्टीपल। सही यू यानी गेट माय कि पॉइंट? मल्टी लेवल में आप एक से ज्यादा को नहीं कर सकते। नहीं, एक से ज्यादा नहीं कर सकते, एग्जैक्टली। अच्छा ठीक है जी। समझ गया मैं। ठीक है। ऑल राइट ये जी एज एज ए कॉन्सेप्ट आपने समझना, इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस तो मेरे ख्याल से नहीं आएंगे। मतलब आप अच्छा कॉन्सेप्ट वाइज हम जब पास पेपर करेंगे तो आइडिया हो जाएगा कि ठीक हाउ है आर वी सपोज टू यूज क्लासेस, क्लास का फायदा क्या है। सही है ठीक है। यू गेट जी माय पॉइंट? यस अच्छा। तो ये भी हो गया। इसके बाद हमारा जो टॉपिक रहता है ना, दो बस हमारा रहता है टॉपिक रिकर्जन का। ठीक है, जो हम कल डिस्कस अच्छा करेंगे। वी कैन डिस्कस रिकर्जन, फुल टॉपिक। रिकर्जन ही वो सिर्फ कल हो सकेगा, ये फुल टॉपिक है वो। उसके कोई चार पांच एग्जांपल्स हैं जो आई हैव टू एक्सप्लेन यू। एंड ऑल राइट देन वी हैव, या बस हो गया। फिर हमारा पॉलीमॉर्फिज्म है। ओके। वो ओके मैं प्रॉब्लम कल एक्सप्लेन कर दूंगा, रिकर्जन सही है पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा और फिर कल कल मंडे है हमारी क्लास मंडे को है या थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। ओ यस, सॉरी सॉरी, मगर वो फिर एक मेकअप रख लेना, एक रह गई थी, ट्यूसडे को रख लें फिर एक। जी whenever you you वो like yes वी डिडंट हैव द क्लास ऑन सैटरडे ना, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल है ना? तो वी कैन हैव जी ऑन ट्यूसडे, फाइन। यस परफेक्ट फॉर श्योर, ठीक है, ट्यूसडे को फिर हम खत्म करते हैं। और फिर हम उसके बाद में गैप आ जाएगा। आप ये सब कुछ रिवाइज करोगे, क्योंकि जी उस अगले जो हमारी क्लास होगी थर्सडे को, वी विल जी अटेम्प्ट पास पेपर ऑफ P4। सही है ठीक है। मगर वो तभी फायदा जी है कि लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग यार, लंबा तो जाएगा।